علیکم دوستوں، انسائٹ میں موظف اگر میں خوش آمدید لیں جناب حالیہ دنوں کے اندر اعلیٰ عسکری قیادت کی طرف سے پاکستان کے نوجوانوں کو اعتماد میں لینے کے ایک سلسلے کا آغاز ہوا تھا، اور اس سلسلے میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے ملک بھر کی مختلف یونیورسٹیز میں زیر تعلیم طالب علموں کو جو ہے وہ اسلام آباد مدعو کیا تھا، اور ان کے ساتھ ایک طویل انٹریکشن کیا تھا جہاں پر ان کے بہت سارے سوالات کے نہ صرف جوابات دیے گئے تھے بلکہ ان کے ذہنوں میں پائے جانے والے مختلف ابہاموں کو ختم بھی کیا گیا تھا، اور چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے ان کو ایک اگلا لاہ عمل بھی بتایا گیا تھا۔ اسی طرح کا ایک انٹریکشن لاہور میں ہوا تھا جہاں پر ڈی جی آئی صاحب لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب نے مختلف طالب علموں کے ساتھ جو مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ تعلق رکھتے تھے ایسے ہی ایک سیشن سے خطاب بھی کیا تھا، اور ان کے ساتھ ایک انٹریکشن بھی کیا تھا، اور ان کے بہت سارے سوالات کے جواب دیے تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج اتنے دن گزرنے کے بعد اچانک ان دو انٹریکشنز کا ذکر کرنا کیوں مجھے یاد آیا، کیوں میں نے اس ملاقاتوں کا حوالہ دیا؟ کیونکہ ضروری بن گیا تھا ان ملاقاتوں کو یاد دلانا، کیونکہ انہی ملاقاتوں میں سے ایک ملاقات ایک ایسے موقع پر ہوئی تھی جو بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل بنتی چلی جا رہی ہے، اور اس ملاقات کی جو کچھ مخبریاں سامنے آئی ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ عرض یہ ہے جناب کہ ایک انکشاف سامنے آیا ہے، اور یہ انکشاف کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ کنگز پارٹی سمجھی جانے والی آئی پی پی یعنی استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ وہ انکشاف کون سا ہے؟ یقینی طور پر آپ یہ جاننا بھی چاہیں گے، اور یہ ایک لاجیکل سوال بھی ہے، اور اس انکشاف کا تعلق ممکنہ طور پر ایک اہم ترین شخصیت کے دورہ لاہور کے ساتھ آ کر جڑتا ہے، کیونکہ جہاں پر اس دورہ لاہور کے دوران ان کی مختلف ملاقاتیں ہوئی، مختلف انٹریکشنز ہوئے، کویسچن آنسرز کے سیشن ہوئے، سیمینارز ہوئے، وہیں پر ان شخصیت کا لاہور کے اندر ایک سیاسی شخصیت جو ایک اہم ترین سیاسی شخصیت تھی، اور ان کا نام ہے میاں محمد نواز شریف جو مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ سربراہ بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک ملاقات ہوئی تھی۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ملاقات ہے جس کا انکشاف ہوا ہے، یہ ملاقات خود محترم نواز شریف صاحب کی خواہش پر ہوئی تھی، اور اس ملاقات کا ایجنڈا بھی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے ساتھ جا کر جڑتا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے، یہ اس انکشاف کا تعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دروغ بگردن راوی استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے یہ انکشاف کیسے سامنے آیا، اور اس کی پھر جو ایک کاؤنٹر تصدیق ہے وہ کیسے ہوتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اس ملاقات کے راویوں کے مطابق یہ ملاقات میں محترم نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک خواہش کہہ لیں یا ایک ضد کہہ لیں، اس کا جو ہے اظہار کیا گیا۔ محترم نواز شریف صاحب نے دو آپشنز جو ہیں وہ رکھے۔ ایک آپشن کے تحت نواز شریف صاحب کا یہ ماننا تھا کہ اگر تو مسلم لیگ نون کو ان انتخابات جو کہ 8 فروری میں ہونے جا رہے ہیں، ان انتخابات کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کو ایک کمفرٹیبل پوزیشن مل جاتی ہے، ان کو ایک ایسی پوزیشن مل جاتی ہے جہاں پر مسلم لیگ نون سنگل ہینڈڈلی اپنی حکومت تشکیل دے سکتی ہے، تو محترم نواز شریف صاحب اس حکومت کو لیڈ کرنے کے لیے مکمل طور پر نہ صرف تیار ہیں بلکہ وہ خوشی سے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہوں گے، ریڈی ہوں گے، اور اس پر ان کو کسی طرح کا کوئی تعامل یا ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ دوسری صورت میں اگر مسلم لیگ نون کو اتنی میجورٹی نہیں ملتی کہ وہ اکیلے حکومت سازی کرے، اور اس کو مختلف اتحادیوں کے مدد جس میں آئی پی پی شامل ہے، جس میں جے یو آئی شامل ہے، جس میں بیپ شامل ہے، جس کے اندر ایم کیو ایم شامل ہے، اور دیگر آزاد لوگ شامل ہیں، ان کے سر کے اوپر حکومت بنانا پڑے، تو ایسی صورت میں محترم نواز شریف صاحب کی یہ خواہش ہے کہ ان کی جگہ پر محترمہ مریم نواز صاحبہ کو وزارت عظمیٰ کا تاج پہنایا جائے اور ان کو وزیر اعظم بنایا جائے، جبکہ شہباز شریف صاحب کو چیف منسٹر پنجاب کا عہدہ دیا جائے، اور وہ پنجاب کو اپنے قابو میں رکھیں، اور اس اپنی جو پنجاب کی پرفارمنس ہے اس سے مسلم لیگ نون کو اور زیادہ سٹرینتھن کرے۔ یہ تجویز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس تجویز کو کہ جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعظم کی امیدوار ہوں گی، اس تجویز کو کچھ زیادہ اچھا نہیں سمجھا گیا، اور اس تجویز کے اوپر کچھ زیادہ پازیٹیو رسپانس سامنے نہیں آیا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں اس مطالبے کے سامنے آنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے چند ایسے جیسچرز کا مظاہرہ کیا گیا جس کے ذریعے مسلم لیگ نون کو
शायद ये बावर या नवाज शरीफ साहब को शायद ये बावर कराना था कि जनाब आप अपने इस मुतालबे से पीछे हट जाएं, हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, और अगर हम उन ऑप्शंस पर चले गए तो फिर आपके लिए जो चीजें हैं ना वो बहुत ज्यादा महदूद हो जाएंगी, लिहाजा संभल जाएं। और बताया ये जा रहा है कि इस वजह से जो तलखी है थोड़ी सी वो डेवलप हुई। बाद में जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो फायर फाइटिंग मिशन में सामने आते हैं, और बताया ये जा रहा है कि जो है ना शहबाज शरीफ साहब, उनकी कोई किस्मत का सितारा चमकने के कुछ इम्कानात पैदा हो गए हैं और उनकी किस्मत का सितारा अब चमकने जा रहा है। ये जो इंकशाफ जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है, ये चूंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के एक सरकर्दा लीडर के जरिए सामने आया, लिहाजा जब इसकी कुछ तहकीकात की तो ये बात तो मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत ही ज्यादा डिस्कशन में है कि अभी एक मरतबा भी जो मुस्लिम लीग नून ने अपनी इंतखाबी कैंपेन चलाई है, किसी एक नुक्ते पर भी इस बात का इजहार खुद नवाज शरीफ साहब की तरफ से नहीं किया गया कि मैंने चौथी मरतबा वजीर आजम बनना है और मैं वजीर आजम बनकर आपको इस मुश्किल से निकालूंगा। वो हमेशा अपनी पार्टी का ही इजहार कर रहे हैं, और जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप यानी नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज को अपने से बात खिताब की तरफ जो है उसकी दावत खुद देते हैं, और जो इंपॉर्टेंट उनके खिताब के जो पहलू हैं या अहम ऐलानात हैं वो खुद भी मरियम नवाज के जरिए ही कराते हैं। तो उसका मतलब ये समझा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहिबा को इंपॉर्टेंट रोल दे रहे हैं, और ये बात इस खबर की किसी तरह से तस्दीक करती हुई नजर आ रही है कि जनाब इस तरह का कोई सिचुएशन बन रही है। एक दूसरे सोर्स ने जो मुस्लिम लीग नून के अंदर वेल प्लेस्ड है उसका ये कहना है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इत्तेहादियों की बैसाखियों और ये जो स्पेशल बना हुआ है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जिसको हेड कर रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसमें मौजूद है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दीगर जो इदारे से वाबस्ता दीगर अफराद हैं, उनके सहारे पर खड़ी हुई हुकूमत को मोहतरम नवाज शरीफ साहब अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार नहीं है। उनका इस बात का जहन बन चुका है कि जनाब मैंने इस तरह अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती तो मैंने इस हुकूमत को किसी भी सूरत कबूल नहीं करना। इस चक्कर के अंदर ये तो नहीं होगा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो कह देंगे जनाब मैं हुकूमत नहीं बनाऊंगा। हाँ, इस सूरत के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी किस्मत का सितारा चमक सकता है, और मोहतरम नवाज शरीफ साहब की तरफ से इस बात का कुछ इशारा भी दिया गया है। और वो जो फायर फाइटिंग कैंपेन का आगाज हुआ था वहां पर भी इसी बात के ऊपर गौर किया गया था, और उसका इजहार इस तरह से किया गया था कि अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, एक मरतबा फिर इत्तेहादी हुकूमत बनती है और शहबाज शरीफ साहब को चूंकि एक कॉम्प्लेक्स्ड किस्म की मुख्तलिफुल ख्याल जो इत्तेहादी हुकूमत है उसको कामयाबी के साथ 16 माह चलाने का तजुर्बा है, तो शहबाज शरीफ साहब को एक मरतबा फिर ये ऐसी ही एक इत्तेहादी हुकूमत चलाने के लिए जो तैयार है वो किया भी जाएगा, और उनको इत्तेहादी हुकूमत की सरबराही सौंपी भी जाएगी। मरियम नवाज के लिए नवाज शरीफ साहब की ये तजवीज़ है कि या शहबाज शरीफ साहब की ये तजवीज़ है कि मरियम नवाज साहिबा को अगर नवाज शरीफ साहब मरकज में जाते हैं एज प्राइम मिनिस्टर, तब मरियम नवाज मरकज में नवाज शरीफ साहब के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठेंगी और अपना जो भी काम है, जो भी उनको जिम्मेदारी दी जाएगी वो अदा करेंगी, और चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे शहबाज शरीफ साहब। दूसरा ऑप्शन ये बनता है कि अगर शहबाज शरीफ साहब मरकज में जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे, ऐसी सूरत में मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो हो जाएंगी चीफ मिनिस्टर पंजाब, और चीफ मिनिस्टर पंजाब होते हुए वो 2029 के इंतखाबात में बतौर वजीर आजम सामने आएंगी, और वो पंजाब में होने वाली अपनी कामयाबियों को लेकर आगे चलेंगी, और फिर इसी तरह जो सियासी विरसा है वो अगली नस्ल को मुंतकिल हो जाएगा। मरियम नवाज मरकज में आएंगी, वो वजीर आजम बनेंगी, जबकि हमजा शहबाज साहब वो पंजाब में रहेंगे और वो चीफ मिनिस्टर या पंजाब की पॉलिटिक्स वो देखेंगे। इस तरीके से ये जो खानदानी सियासत का जो विरसा है ये अगली नस्ल को मुंतकिल कर दिया जाएगा। अब बताया ये जा रहा है कि ये जो फार्मूला है, जो प्लान भी है शहबाज शरीफ मरियम नवाज वाला, इस फार्मूले के ऊपर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने भी कान धरे हैं, जबकि जो अहम तरीन फैसला साज हैं
उन्होंने इस हवाले से जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से भी रब्ता किया है। आसिफ अली जरदारी साहब का ये मानना है कि पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत नवाज शरीफ साहब को चौथी मर्तबा वजीर आजम तस्लीम नहीं करेगी, कबूल नहीं करेगी। और इस बात का बरमला इजहार आसिफ अली जरदारी साहब ने भी जो जलसों से खिताब किया है वहां पे भी किया है। बिलावल भुट्टो साहब तो बहुत ही ज्यादा वोकल हैं और उन्होंने अपनी अगरचे इंतखाबी कैंप पे बहुत ही अच्छी उठान उन्होंने दी है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि पंजाब में बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी पार्टी को ना सिर्फ एक मर्तबा फिर अपने कदमों पर खड़ा करने के लिए मेहनत की है, बल्कि उनकी तरफ से लाहौर में इलेक्शन लड़ने का जो एक दलेराना कदम उठाया गया, उसने उनकी पार्टी के अंदर एक नई रूह फूंकी है। इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर बहुत ज्यादा मोटिवेटेड नजर आ रहा है और बिलावल भुट्टो साहब का ये ऐलान कि जनाब वो किसी भी सूरत नवाज शरीफ साहब की क़यादत में बनने वाली हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये बिल्कुल उसी पॉलिसी की तरफ इशारा है जिसका इजहार आसिफ अली जरदारी साहब ने किया। हाँ, ये जरूर है कि अगर नवाज शरीफ साहब चौथी मर्तबा वजीर आजम नहीं बनेंगे, तब आसिफ अली जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को अपना कंधा देने के लिए या उसकी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन चूंकि ये सियासी खेल है, सियासी खेल के अंदर मैंने आपको बताया ना, देयर इज नो फ्री लंच। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई पॉलिटिकल बार्गेनिंग ना हो। ऐसी सूरत में अगर शहबाज शरीफ साहब मरकज में वजीर आजम होंगे तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब के लिए जो ईवान वजीर सदर है वहां पर उनकी रसाई यकीनी हो जाएगी। और मेरा ये ख्याल है कि ये एक वायबल किस्म का एक मैकेनिज्म है या एक वायबल किस्म का जो सोल्यूशन है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। इस सारे चक्कर के अंदर एक बात तो मेरा ख्याल है काफी हद तक वाज़ेह होती हुई नजर आ रही है कि इस इलेक्शन में आज़ादों की जो मकबूलियत है या आज़ादों को नजरअंदाज करना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं वो शायद खुद इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी मुमकिन नहीं। ये मुलाकात जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया, ये इंकशाफ जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया कि नवाज शरीफ साहब जिद पर अड़ गए हैं, ये जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब ने एक टॉक शो के अंदर इस बात का बरमला जिक्र किया है कि जनाब हालिया दिनों के अंदर ये वाली एक पेशरफ्त हुई है जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के दरमियान गैप आता हुआ नजर आ रहा है। और उन्होंने कहा कि जनाब मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि नवाज शरीफ चौथी मर्तबा वजीर आजम नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा जनाब ये बात मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, आप आज के दिन में ये बात मेरी नोट कर लें कि नवाज शरीफ साहब भी वजीर आजम नहीं बनेंगे और मरियम नवाज भी वजीर आजम नहीं बनेंगी। ओन चौधरी साहब जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के एक सरकर्दा लीडर भी हैं, मुस्लिम लीग नून के करीब भी हैं, मुस्लिम लीग नून की हमायत से NA 128 के अंदर इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, उन्होंने वही न्यूज़ को एक इंटरव्यू में इस बात का इजहार किया है कि मरियम नवाज साहिबा को चीफ मिनिस्टर पंजाब के ओहदे के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उनको एक मौजू उम्मीदवार समझ रही है। यानी वो जो एक प्लान बी है कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर पंजाब, इस ऑप्शन पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी पीपल्स पार्टी की हम ख्याल है जो हमें एक मुस्तकबिल की लाइनअप के अंदर तब्दीली नजर आ रही है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे यही ऑप्शन फाइनल होते हुए सामने आएगा, अलबत्ता इस सारे ऑप्शन की कामयाबी या नाकामी का दारोमदार 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस पर है, क्योंकि यहां पर जो खामोशी है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान कुन है। इन इलेक्शंस के अंदर PTI का रद्द-ए-अमल क्या होगा, वो वोटर और सपोर्टर निकलेगा या नहीं निकलेगा, डिमोरलाइज होगा, रिएक्शनरी होगा, इसके ऊपर अभी तक कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। क्योंकि अगर तो वो वोटर निकल आया, ये खामोशी जो है तूफान का सबब बन गई, तो फिर तो बड़े बड़ों के जनाब बड़े बुर्ज उलट जाएंगे और अनहोनियां हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये जो ऑप्शंस दो मैंने आपके सामने रखे हैं, यही मुझे आगे बढ़ते हुए और फाइनल होते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।